9.2 is about the rate. We can compare two or more quantities of different kind. For example, if shop A sells 6 eggs cost rupees 50 and shop B sells 12 eggs cost rupees 90, which shop should we buy the eggs from? First of all, for this purpose, we have to find out the rate. What is the rate? We will divide the 50 by 6. So we will get 8.33, and shop B, the rate of shop B is 90 divided by 12. It means the answer will be 7.5. So we can compare the rate 8.3 to 7.4, so 7.5. So we find that the 7.5 is less than the 8.3, so we can buy the egg from shop B. Here are the example: the rate of interest given for offer from the bank, heart rate. These are the example from the daily life. Now come to the exercise 9B. The question number 1. A typist type 1800 words in 1 hour. Find the number of words that she can type per minute. We have to find out the rate. कैसे करेंगे? 1800 को हम divide कर देंगे 60 से. Why we are dividing 60? Because 1 hour contain how many minutes? 60 minutes. So we will divide the 1800 words with the 60 because the time is 1 hour. We convert the 1 hour into minute. 1 hour contains 60 minutes, so we will find out the number of words that she can type per minute. Per minute means rate. Number of words that she can type per minute is 1800 divided by 60. We will divide 1800 by 60, so we will find out the 30. The answer will be 30. How? How this answer will be the 60? Because we will cut the 0 from the 0 of 1800. Look, we will cut the 0 from 0, and 6 ones are 6 and 6 threes are 18 and the 0. Okay, the answer will be 30. 30. Now number 2. If $120.99 is charged for 654 unit of electricity used, find the cost of 1 unit of electricity. What is the task? We have to find out the cost of 1 unit of electricity. 1 unit कैसे आएगा? 1 यूनिट कैसे आएगा कि हम 120.99 को डिवाइड कर दें 650 से, 654 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.19. अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है कि 654 को कैसे करें, तो आपको उसको पहले अगर 3 से डिवाइड कर लें, 3 से डिवाइड, लेकिन ये ज्यादा डिवाइड नहीं होगा. 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 यहाँ आएगा, तो 6 8 जा 24, 2 18, and we will divide it 3 4s are 12, 0.3 3s are 9. Again we will divide, make the rough work. In rough work we will divide the 40.33 to 218, 218. If we divide, so we will get the 0.19 answer in dollar. This is the cost of 1 unit of electricity. 1 unit find per thing. For per unit, we will divide the 654 into the जो कॉस्ट दी हुई है 120.9. ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करने लगे? नेक्स्ट क्वेश्चन सी. इसका सी पार्ट था. ठीक है, सी पार्ट हम कैसे करेंगे? ये ना, monthly rental rate. His monthly rental rate, the what was the dollar in dollar rate was the 4800 rupee dollar amount, and the 3 month उसने पे किए. तो कैसे हम निकालेंगे? 3 को डिवाइड कर देंगे इससे. तो कैसे आप निकालेंगे? डिवाइड करेंगे,
Okay. Now 3 ones are 3 and 3 ones are 3, 3 6 are 18 and 0 0. So the answer will be $1,600. This is the monthly rental rate. Okay. Now question 4, mass per meter. What is mass per meter? 15 को डिवाइड किससे कर देंगे? 3.25 से. क्वेश्चन डी में क्या पूछा हुआ है? मास पर मीटर. तो 15 वैल्यू दी हुई है, 3.5 दी हुई है. तो आपने क्या करना है? किलोग्राम कितना था आपके पास? 15 किलोग्राम था. मीटर कितना था? 3.25 था. तो मास पर मीटर कैसे निकलेगा? इन दोनों को आप डिवाइड कर देंगे. ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा. अच्छा, अब ये क्वेश्चन पे दोबारा से चलते हैं. हम क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं कि क्वेश्चन में असल में पूछा क्या हुआ. ओके, बी देखें. इफ द मास ऑफ ए मेटल बार विच इज 3.25 मीटर लॉन्ग, दिस इज द लेंथ इन मीटर, और मास कितना है? 15 kg. फाइंड इट्स मास पर मीटर. मास को डिवाइड करेंगे मीटर से, तो ऊपर क्या रखेंगे हम? न्यूमरेटर 15 किलोग्राम ऊपर रखेंगे, और डिवाइड किससे करेंगे? 3.25 से. तो फिर आपके पास आ जाएगा आंसर. तो अब हम दोबारा से शो करते हैं. ठीक है जी. इसको करने के लिए क्या करेंगे? पहले मैं इसको रफ वर्क में आपको बता देती हूँ, ताकि आपको इजी समझ में आ जाए कि किया कैसे टीचर ने. देखिए, 15 divided by 3.25. 3.25. Again, we know that we have to reduce the point. For reduction of point, we will write down the 20 in beside the 15. This will be 1500. Okay. Now we will divide it by the 5. कैसे 5 से divide करेंगे? 5 1 the 5 6 the 30 and 5 5 the 25. Okay. Now this 5 3s are 15 and 0 0. Okay. Now again we will divide it by the 5. 5 1s are 5, 5 3s are 15, and this will be 5 6 are 30. Okay, and 0 0. ठीक है, मेरे पास ये आंसर आ रहा है. ठीक है, सही है. ये आपके पास आंसर है, और ये किलोग्राम पर मीटर. नाउ अब इसको आंसर को चेक करेंगे. अगर इसका आंसर सही नहीं हुआ तो हम इसको दोबारा फिर बाद में कल देख लेंगे. नाउ द क्वेश्चन 2, Ethan can blow 15 balloon. Ethan is a boy. He can blow 15 balloons in 20 minutes. क्या करते हैं? 20 मिनट में 15 बैलून को वो ब्लो कर सकता है. अगेन अनदर बॉय जॉन बॉय कैन ब्लो 18 balloon in 25 मिनट. विशाल क्या कर सकता है? विशाल कैन ब्लो 16 balloon in 21 minute. Assuming that all balloon are blown to the same size, who can blow balloon at the fastest rate? कौन सबसे ज्यादा जो है बलून जो है वो फुला सकता है? कौन जल्दी फुला सकता है? ये आपको बताना है. कौन जल्दी फुला सकता है ये बताना है आपने. तो कैसे करेंगे? पहले सबके रेट फाइंड आउट करेंगे. रेट कैसे निकलते हैं? आपने क्या करना है कि बलून, नंबर ऑफ बलून को डिवाइड कर देंगे टाइम से. टाइम कितना है आपके? पहले में आपके पास कितना है? 25. ठीक है, 18. ये थोड़ी सी क्वांटिटी में ये फर्क आ गया इसमें. एक मिनट. ठीक है, आपने क्या करना है? नंबर रेट फाइंड आउट करना है. रेट फाइंड आउट करेंगे तो उनको डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा, तो जिसका सबसे कम टाइम आएगा, जिसका सबसे कम टाइम होगा, इसका मतलब है वो जल्दी फुला सकेगा. जिसका सबसे कम आएगा. ठीक है, तो पहले में आपने किसको डिवाइड किसको करना है? 20 को बलून, मिनट्स को, टाइम को और बलून से. 20 डिवाइड बाय 15. तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको हम सही कर लेते हैं. ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको सही करते हैं. एक मिनट पहले जो है ना, इसको स्केप करेंगे. जी, अच्छा, इसमें क्या आएगा हमारे पास? 20.
ठीक है, सब नोट कर ले, नोट जो बच्चे साथ साथ करते जा रहे हैं, जो साथ साथ करते जा रहे हैं उनको आसानी होगी कि वो समझ सकते। देखिए 20 को डिवाइड करेंगे 15 से, वाई? क्योंकि 20 क्या है, टाइम है, और बलून कितने हैं, 15। टाइम को बलून से अब रेशो निकालना है। अब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1.38 आ रहा है। कैसे कर सकते हैं इसका, मैं इसको हम सिंपल कर सकते हैं। इससे पहले नीचे वाला भी चेक कर लेते हैं कि हमारा कोई मिस्टेक तो नहीं है। 21/16 ये सही है। अब हम इसको ना रफ वर्क में करते हैं, डिवाइड करके दिखाती हूँ आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। ये रहा, ठीक है, एनोटेशन लेते हैं हम। अच्छा चले, हम क्या करेंगे, 15 और 20 का रेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 15 को हम बाहर रखेंगे और 20 को हम अंदर रखेंगे। अब आपको पता है 15 1 जा 15, ठीक है, तो अब आपके पास 15 आ गया। अब माइनस कर दो तो कितना बचा, 5। अब पॉइंट, तो पॉइंट लगा देते हैं, पॉइंट लगा के 50 हो जाएगा। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 3 से हो जाएगा। यहाँ पे लिखे 45। ओके, नाउ माइनस अगेन 50 आ गया, अगेन 50 आ गया, तो अगेन आप इसको जो है ना 15 3 जा, ठीक है, इसी तरह आपके पास 1.33 आ जाएगा आंसर। ये 1.33 आ रहा है, यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 1.38, ये 333 आएगा, 1.33 मिनट, ठीक है, ये आ गया। टाइम टेकन फॉर नेक्स्ट, टाइम टेकन फॉर जो वाई टू ब्लो वन बलून, किस तरह निकालेंगे? अब आप लोग मुझे बताएं, चैट बॉक्स खोल रही हूँ मैं, चैट बॉक्स में आंसर बताएं। 21 को 16 से डिवाइड करें। यस, जी जी, जल्दी से आंसर बताएं। 21 डिवाइडेड बाय 16, 21 को 16 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जो वाई जो है वो 16 बलून को 21 मिनट में ब्लो कर सकता है, तो 21 मिनट को ऊपर रखेंगे और 16 को हम नीचे रखेंगे, रेट फाइंड आउट हो जाएगा। कौन आंसर कर रहा है इसका? चैट बॉक्स मैंने ओपन किया हुआ, जल्दी से आंसर दें बेटा। जल्दी, 1.3, ओके, 1.3125, ओके, सब कितने बच्चों का आ गया? 1.3125 मैंने लिखा अभी वह नीचे मिनट्स में। यस, वी हैव टू ओनली डिवाइड इट, यस, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, सी। सी इज अबाउट द अनदर बॉय, दैट इज द विशाल। विशाल का क्या है, 16, ये ना वैल्यू थोड़ी चेंज हो गई है मेरे पास यहाँ जो रिटर्न में है ना, ठीक है। मैंने जो अभी आपको बताया था ना वो विशाल का था। अब मैं बताऊंगी जन वॉय का। जन वॉय ने 18 बलून 25 में डिवाइड किया। अब आप बताएं, वैल्यू चेंज करते हैं यहाँ पे इसकी, जी जी बेटा, 18 को डिवाइड करेंगे, जन वॉय का बताएं। जन वॉय ने 25 बलून 18, ठीक है, 18 से डिवाइड करेंगे, 25 मिनट में 18 बलून ब्लो किए थे। अब आप बताएं इसका क्या आंसर आएगा? जी, 25 डिवाइड बाय 18 बताएं जन वॉय का। ये विशाल वाला नहीं, मैं इसको सही करके भेजूंगी। गिव द आंसर। 1.388, सही है, ठीक है, 1.388, गुड। अब मुझे आप लोग ये बताना है कि सबसे कम रेट किसका था, यानी कि सबसे कम टाइम किसने लिया, कौन बताएगा? हु टेक मिनिमम टाइम टू ब्लो द बलून, हु टेक मिनिमम टाइम टू ब्लो द बलून।
गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स। देखें टाइम क्या क्या आया, सबसे पहले जो टाइम आया था ईथन का आया 1.3, जॉन वाई का आया 1.38, ठीक है, और विशाल का आया 1.312। हु टेक द मिनिमम टाइम टू ब्लो द बलून, किसने सबसे कम टाइम लिया बलून को फुलाने में? जी बच्चों, यस। हम्म, आप कह रहे इथन, मिनिमम टाइम पूछ रही हूँ मैं, जैसे एक ने लिया 1.3, एक ने लिया 1.32312, एक ने लिया 1.38, तो सबसे कम टाइम किसका आया? विशाल का। विशाल का क्यों आया? क्योंकि उसका है 1.3125। ठीक है, विशाल है। क्या आंसर आएगा ये मैंने लिखा हुआ है, देखें आप देख सकते हैं। डज विशाल टू बलून एट द, विशाल ब्लो द बलून एट द फास्टेस्ट रेस। तो विशाल का इसलिए आया क्योंकि उसकी वैल्यू सबसे कम थी, उसने सबसे कम टाइम में जो है वो सबसे ज्यादा बलून फुला ली। ये पता करना है आपको, क्वेश्चन को समझना है। नाउ ओके, द क्वेश्चन नंबर 3, फॉर ईच ऑर्नामेंट दैट अ वर्कर मेक्स ही इज पेड $1.15। क्या क्वेश्चन है? ऑर्नामेंट कहते हैं कोई भी डेकोरेशन की चीज। एक वर्कर डेकोरेटिव पीस बना रहा है और उसको कितने मिल रहे हैं हर पीस बनाने पर? $1.15। ही मेक्स 4 ऑर्नामेंट, उसने 4 ऑर्नामेंट बनाए, कितने मिनट में? 15 मिनट में। ठीक है, फाइंड द अमाउंट अर्न बाय द वर्कर इन वर्क 3 आवर्स, उसने टोटल काम किया 3 आवर्स में। पहले क्या करेंगे, सारी बात हो रही मिनट में, पहले बात हो रही मिनट में, अब बात हो गई आवर्स में। तो पहले हम क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट कर लेंगे कि इस 3 आवर्स उसने जो काम किया उसमें मिनट कितने बनते हैं। सो वी विल in the solution, first we will convert the hours, 3 hours into 180 मिनट होते हैं। कैसे कैसे करेंगे 3 आवर्स को 180 मिनट में, कैसे हो जाएगा? हाउ वी कैन कैलकुलेट, हाउ वी कन्वर्ट द आवर्स इनटू द मिनट्स, कैसे करते हैं कि हम, यस, इनोटेशन से हम रफ वर्क में करते हैं। 3 को मल्टीप्लाई कर दो 60 से, 3 आवर्स मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय द 60, तो ये हमारे पास मिनट आ जाएंगे। कैसे आएंगे? 0, ठीक है, 3 6 18, तो 3 आवर्स कंटेन 80 मिनट, 3 आवर्स कंटेन 80 मिनट। ओके, ठीक है, अब ये इरेजर मैं ढूंढ रही थी और चलें देखते हैं। यस यस, ओके, नाउ स्टूडेंट we have convert the 3 hours into minutes, 180 minute। अब number of ornament he made in 3 hours, 3 hours में उसने टोटल ऑर्नामेंट कितने बनाए होंगे, कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि वो 15 मिनट में 180 ऑर्नामेंट, 15 मिनट में वो कितने बना रहा था? 4। ठीक है, पहले तो रेट कैसे निकालेंगे? रेट ऐसे निकालेंगे कि टोटल कितने मिनट है हमारे पास? 180, उसको डिवाइड करेंगे 15 से और मल्टीप्लाई करेंगे जितने वो ऑर्नामेंट बना रहा है, तो आपके पास आ जाएगा आंसर इसका। तो पहले कैसे निकालेंगे? पहले 180 को, 180 है, रफ वर्क में बताती हूँ, ये 180 टाइम है, ठीक है, 3 आवर्स में, क्योंकि देखें 180 में वो 4 अगर जो है ऑर्नामेंट वो बनाता है 15 में, असल में ऐसे होना चाहिए था, ठीक है, 15 मिनट में वो 4 ऑर्नामेंट बना रहा है, तो 180 आवर में कितना बनाएगा? ये असल में इस तरह से होगा, और देखें आप लोग, ये रेट है। व्हाट इज द रेट? ही कैन मेक, अ वर्कर कैन मेक 4 ऑर्नामेंट इन 15 मिनट, ठीक है, तो 180 में कितना बनाएगा? 180 मिनट में कितना ही बनाएगा? तो हम कैसे निकालेंगे? पहले आप इसको डिवाइड कर लो 3 से, 3 5 15, 3 6 18 एंड 0। अब ये क्या 3 से भी दोबारा से भी कट हो सकता है? कैसे? 3 1 3, 3 2 6 एंड 0, जैसे हो सकता है। तो ये 24 आपके पास आ जाएगा 80,
ठीक है, 24 सा 80 आ रहा है। तो फिर आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया ये ना, 1 मिनट, ये कटिंग रॉन्ग हो गई। ये क्या है आपके पास, 3 5 सा 15 होता है, 5 आना था। तो फिर आपके पास आ जाएगा 60। अब 5 से जब आप इसको काटेंगे तो ये आपके पास आएगा, ये 20 को कैंसिल कर दें, 5 1 सा 5 एंड 5 का यहाँ बच गया, 5 2 सा 10। तो ये आपके पास आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 4। 12 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है, 48। ठीक है, 12 4 सा 48 होता है, ये आंसर आ गया। इसका क्या मतलब है कि 118 पूछा है ना, क्या फाइंड आउट द हाउ ही मेक्स 4 ऑर्नामेंट इन, तो फिर कितने 3 आवर्स में उसने 48 ऑर्नामेंट बनाए। और लास्ट में इन्होंने पूछा है कि फाइंड द अमाउंट अर्न बाय द वर्कर इफ ही वर्क्स फॉर 3 आवर्स। अगर एक वर्कर 3 घंटे में 48 ऑर्नामेंट बनाता है तो कितने पैसे कमाएगा, कितने पैसे कमाएगा। ये जो 48 उसने ऑर्नामेंट बनाए हैं ना, उनसे वो अमाउंट, वो डॉलर आप मल्टीप्लाई कर दो, कितने हैं डॉलर, हर एक ऑर्नामेंट पे वो कितने डॉलर अर्न कर रहे हैं, 1.15। 1 ऑर्नामेंट के उसको मिल रहे हैं 1.15। तो 48 के कितने मिलेंगे, 48 मल्टीप्लाई बाय डॉलर 1.15। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर इसको यहीं पर फर्क में कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 48 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.15। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारा आंसर जो सही है आ रहा है या नहीं। 5 8 ज़ा 40, 0 4 रिमेनिंग है, यहाँ पे रख लिया, कैरी कर दी। 5 4 ज़ा 20, 20 एंड 4 24। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस आता है, अब 1 से करेंगे, 1 8 ज़ा 8, 1 4 ज़ा 4। ओके, अब एक और क्रॉस लगाएंगे, 1 8 ज़ा 8, 1 4 ज़ा 4। अब हम इनको प्लस करेंगे, 0 8 एंड 4 12 होता है, 2 आ गया, एक 1 बचा है, ये 1 हमने ऊपर कैरी कर लिया। 1 एंड 2 3, 3 एंड 4 7, 7 एंड 8 बताएं, 7 एंड 8 कितने होंगे, 15। ठीक है, 5 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, अब ये 1 एंड 4 कितना हो गया, 5। अब क्वेश्चन में है कि पॉइंट कहाँ लगता है, इस पूरे में देखें 1 2 के बाद पॉइंट है, तो आप यहाँ से भी गिने, 1 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लगा दिया। ठीक है, ओह ठीक है, तो अब आपका ये आंसर आ गया $55.20। अब दोबारा से पूरा समझाती हूँ। ये क्वेश्चन था, एक वर्कर है जो कि उसको एक ऑर्नामेंट बनाने पे $1.5 मिलते हैं। अगर वो 4 ऑर्नामेंट बनाता है हर 15 मिनट के बाद, तो उसको कितने पैसे मिलेंगे अगर वो 3 घंटे काम करे। हमने क्या किया, 3 आवर्स को कन्वर्ट कर दिया 180 मिनट में। फिर हमने कहा रेट निकाला। रेट क्या है कि 15, यानी कि कैसे रेट निकलता है, रेट ऐसे निकलता है कि अगर कोई भी 4 जो है वो ऑर्नामेंट बना रहा है 15 मिनट में, उसको उससे 4 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक है, ये रेट है। इसको डिवाइड किया हमने, डिवाइड करके 48 आंसर आ रहा है। ये कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्नामेंट। फिर हमने क्या किया कि उसने कितने ऑर्नामेंट बनाए और कमाए, कितने पैसे कमाए, तो जितने 48 ऑर्नामेंट थे उसको मल्टीप्लाई कर दिया डॉलर से, जितने उसको 1 ऑर्नामेंट पर डॉलर मिल रहे हैं उसको उससे मल्टीप्लाई किया, तो 55.20 आ गया। ये आ गया आपके पास आंसर। ठीक है।